Hello everyone, dear students. Today we will read a new chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. Before you read, this is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. We will know that this is a Japanese story, a tale written by William Elliot Griffiths. In this chapter, this is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. In this chapter, we will come to know that there is an honest couple and his pet dog and their pet dog. What happened in this chapter? What happened to the honest man and the dog? We will see in this chapter. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to their master in unexpected ways. So, in this story, we will read about the love affection between the old couple and honest old couple and pet dog. Their neighbor was very wicked, so he always live in troublesome, and the dog dies a sad death. Once he begged to the dog, to pet dog of the honest man, honest couple, and the wicked neighbor killed the dog. But the spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. Though the dog was killed, but his spirit after death also supported the master, means the owner of the dog, the owner of the pet dog. So let's start this story. In the good old days of Daimios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Daimios, who was Daimios? In 19th century Japan, wealthy landowners. Daimios were feudal in 19th century in Japan. In the good old days of Daimios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. In good time of Daimios, in his reign, there lived a good couple, an old couple whose only pet was a little dog. तो Daimios के अच्छे दिनों में एक ऑनेस्ट कपल, ओल्ड कपल और उसका एक छोटा पेट डॉग रहते थे. Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके पास having no child, the old couple have no child, so they loved the dog as a their baby. The old dame means woman, made it a cushion of blue crepe. The old dame, old woman, made a cushion of blue crepe. Crepe means cloth. And at meal time means भोजन. मील टाइम भोजन के समय
Muko was the name of the pet dog, for that was its name. Would sit on it as snug as any cat. Snug means comfortable. तो उस कुशन पे जो ओल्ड वुमेन ने बनाया था, भोजन के समय मुको उस पर बैठ जाता था इतने आराम से जैसे कि कोई उस पर बिल्ली बैठी हो, अपना पूरा शरीर उस पर रख के. द काइंड पीपल fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. The kind people fed the pet. Fed. Feed. फर्स्ट फॉर्म फीड मीन्स भोजन करना या भोजन देना. फीड इज अ वर्ब एंड नाउन. व्हाट विल बी नाउन ऑफ फीड? फूड इज अ नाउन एंड फीड FEED फीड इज अ वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ फीड इज अ फेड. So the kind people fed the pet with tidbits. Tidbit means small pieces of fish. Tidbit means small pieces of fish. तो जो the old dame, the kind people fed the pet with tidbits. Tidbit means small pieces of fish. तो ये जो ओल्ड कपल हैं अपने डॉग को फिश के टुकड़े बने फिश भी देते थे खाने के लिए. फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक्स. चॉपस्टिक्स मीन्स फोर्क से, कांटे से. एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वांटेड. और बॉयल्ड राइस उसको देते थे मछली के साथ खाने के लिए, जितना कि उसको ज़रूरत थी, जितना वो खा सकता था. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विथ अ सोल. दस ट्रीटेड, इस तरह का व्यवहार किए जाने पर. द डम क्रिएचर. डम मीन्स ऑल क्रिएचर्स आर डम. जिस तरह से हम लोग अपने बात को कह सकते हैं अपने तो हम लोग एक दूसरे को अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल हैं वो नहीं कर सकते, इसलिए उनको डम क्रिएचर बोला जाता है. लेकिन द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर्स मीन्स संरक्षक. मालिक को जितना वो प्यार करते थे मालिक इस पेट डॉग से, उतना ये भी करता था. लाइक अ बीइंग विथ अ सोल. अ बीइंग विथ अ सोल मीन्स लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. इस तरह से बदले में पेट डॉग लव करता था जैसे कि वह एक डॉग न होकर एक ह्यूमन चाइल्ड है. Human child means here showing emotion. The old man, being a rice farmer, went daily with a hoe or spade into the fields. Old farmer was a rice farmer. डेली अपने फील्ड में जाता था हो और स्पेड के साथ. हो HOE. हो मीन्स कुदाल, स्पेड मीन्स फावड़ा. तो हो एंड स्पेड a tool for digging. Hoe is a tool for digging and spade is also a tool for digging. खोदने के लिए. Working hard from morning until O Tento Sama had gone down behind the hills. सुबह जाता था और शाम तक, जब तक O Tento Sama means सन, पहाड़ी के पीछे छिप नहीं जाता था. सूरज जब ढल जाता था तभी वो घर पे वापस आता था. वो टेंटो सामा जापानी वर्ड है, ये सन को कहते हैं. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर समय रोज़ जो है डॉग फार्मर के साथ, ओल्ड कपल के साथ खेत में उनके साथ जाता था. नेवर वंस हार्मिंग the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और ओल्ड कपल जब फार्म में अपने फील्ड में जाते थे तो ये जो उनके साथ जो डॉग जाता था ये कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता
था। किसको? वाइट हेरोन को। हेरोन बगुला को कहते हैं। हेरोन अ लार्ज बर्ड दैट लिव्स नियर वाटर। हमेशा जो है ये डॉग जो है अपने, जैसे उसके मालिक उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे जब वो खेत में जाते थे। तो द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, तो उनके पैर के पीछे पीछे बगुला भी उड़ उड़ के जाता था और खेत से वर्म्स जो इंसेक्ट्स उसको पिकअप करता था, लिफ्ट करता था। तो बगुले को ओल्ड मैन कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे और डॉग भी। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. The old couple, old fellow, बहुत ही पेशेंट था, काम था, मतलब धैर्यवान था, and kind hearted, and often turned up a sword. Sword means here soil with grass. तो ये मिट्टी, उस मिट्टी को जो ग्रास, जिसमें ग्रास लगी हुई मिट्टी को पलट देते थे। किस लिए? टू गिव फूड टू द बर्ड्स, चिड़ियों को दाना देने के लिए, ठीक, कीड़े मकोड़े। तो ये उनकी भी चिंता करते थे जो डम क्रिएचर्स थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। वन डे द डॉग केम, क्या हुआ कि वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पा अगेंस्ट द लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, but the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a live scratching. एक दिन क्या हुआ कि पेट डॉग दौड़ते हुए आता है और अपने मालिक को, ओल्ड कपल है जो ओल्ड मैन है, उसके पंजे के ऊपर अपना पंजा रखता है। एंड मोशनिंग, इंडिकेटिंग, मोशनिंग मीन्स इंडिकेटिंग, इशारा करता है, विथ हिज हेड, अपने हेड से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, कुछ स्पॉट जो उसके पीछे हैं। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, शुरू में ओल्ड मैन को लगा कि जो पेट डॉग है खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो। Whining means WHINING, whining means here complaining। तो ये बार बार कंप्लेन कर रहा था, उधर ध्यान बटा रहा था और इधर उधर दौड़ रहा था, टू एंड फ्रो। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लिवली स्क्रैचिंग। इसके बाद ओल्ड मैन डॉग के साथ कुछ दूर पे, कुछ यार्ड पर जाता है, जहाँ पे बड़े उत्साह से डॉग स्क्रैचिंग कर रहा था ज़मीन पे। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन आर बीट ऑफ फिश। तो ओल्ड मैन ने सोचा कि हो सकता है वहाँ पे कोई बोन बरीड हो, गड़ा हो, या बीट ऑफ फिश, फिश का टुकड़ा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। अब डॉग को हैप्पी रखने के लिए, उसकी खुश करने के लिए उसने उसके बताए हुए जगह पर अपने हो से, कुल्हाड़ी से, कुदाल से, हो मीन्स कुदाल से वहाँ पे स्ट्रक करता है, मतलब वहाँ पे मारता है। व्हेन, लो, लो मीन्स सी, देखो। अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। अ पाइल, पाइल मीन्स हीप, एक ढेर जिसको बोलते हैं। अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड, ठीक, ढेर सारा सोना वहाँ पे ग्लीम्ड किया, चमका, बिफोर हिम, उस ओल्ड कपल, ओल्ड मैन के सामने। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और 1 घंटे के अंदर ही ओल्ड कपल रिच हो गए। अभी खेत अपने घर से आए हुए, खेत में 1 घंटा लगभग हो रहा था, 1 घंटे में ही उसने
डॉग के कहने पर, स्क्रैच करने पर वहाँ पे कुदाल से अपने स्ट्रक किया और वहाँ पे उसको सोने का ढेर मिल गया। 1 घंटे में ही वह बहुत ही रिच हो जाता है, धनी हो जाता है। Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. इसके बाद जब ढेर सारा उसके रिच हो जाता, ढेर सारे वेल्थ हो जाता उसके पास, तो पीस ऑफ लैंड वो परचेज किया, बॉट किया, ख़रीद लेता है और अपने दोस्तों को फीस्ट पे बुलाता है और जो उसके पुअर नेबर हैं उनको भी बहुत सारे देते हैं, बहुत सारा कुछ प्लेंटीफुली मीन्स वेरी जेनरसली, उनको भी बहुत सारा गिफ्ट देते हैं। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विथ काइंडनेस। और डॉग को क्या करते हैं उसके साथ, दे लव्ड हिम वेरी मच, दे पेटेड हिम नियरली स्मदर्ड, स्मदर मीन्स दया की भरमार करना, विथ हिम विथ काइंडनेस, मतलब उसको भी बहुत ही ज़्यादा दे लव्ड द डॉग। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन and his wife. From this paragraph we will read tomorrow. That's okay. That's all for today. Thank you.